अभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यू मे थिंक इट इज अमेजिंग, बट इज दैट कस्टमर गोइंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट इट टू 10 मोर पीपल? यू हैव टू बी दैट गुड. सेल लाना ज्यादा इजी है, अच्छी क्वालिटी की सेल लाना इज वेरी डिफिकल्ट. इफ यू figure out a way and you build a structure and a org which cares about the customers that you have already acquired and you go out of the way, उसमें आप प्रॉफिट नफा नुकसान मत देखो इतना. ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब आपको ओमनी चैनल जाना है. इवेंचुअली द वर्ड इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम. इट्स डिफिकल्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स आल्सो बिकॉज मार्केट भी ऐसे ही सवाल पूछता है, इन्वेस्टर भी वैसे ही सवाल पूछता है, एम्प्लॉय भी वैसे ही. आप अपनी पूरी ऑर्ग को ओमनी चैनल बनाते हो बट ओमनी कस्टमर नहीं बनाते. You've had an incredible year since the last time we met. And I think I'd like to ask you some questions which will help founders who look up to you and want to emulate your success and hope to get where you reach. So, what do you think was that seemingly one small or unconventional thing you did when you were building Lenskart that gave you that velocity that we see in your business today? I don't know if the founders should look up to me. I think in the world of AI, there is no one should look up to. Everything is changing so rapidly. But in terms of, I think the only unconventional thing, Archana, that has stuck around, and I think even though things are evolving and patterns are evolving, the way we do things are evolving. But one thing in hindsight, when I look back on a lot of things that which allowed us to scale to wherever we are today, and I think will continue to help in the future, is just having a very, very deep focus on customer. I think But just explain that a little. What does that mean? I mean, said हम investors भी बहुत बोलते हैं consumers पे focus करो. What does it mean? I think it really means to ask every day for the next 20 years that you'll do your startup, or 30 years, why people who are buying, why people who are not buying, and what is the real problem that you're solving. And you don't have to do this at high level or even 2 levels below. You have to go 20 levels below. And I'll give you some examples for the audience to understand from maybe our business. But लेंसकार्ट स्टोर पे पहले भीड़ लगती थी तो लोग वेट करते थे. बट पीपल, व्हेन यू आस्क व्हाई पीपल आर नॉट बाइंग, कुछ लोग बोलेंगे यार दूसरा कोई क्यू तोड़ के चला जाता है. तो वी बिल्ट अ क्यू मैकेनिज्म एंड दैट सॉल्व्ड वन प्रॉब्लम एंड मोर पीपल स्टार्टेड बाइंग. एंड देन सम पीपल कम फॉर रिपेयर एंड देन दे सेड कि सर आई टेस्ट की तो क्यू बना दी, रिपेयर की क्यों नहीं बनाई? तो आपने रिपेयर की भी क्यू बना दी. एंड टुडे इन ई कॉमर्स, टुडे लॉजिस्टिक्स में प्रोडक्ट्स जाते हैं एंड वी सेल अ डेलिकेट प्रोडक्ट. And when we got really deep, we realized कि कुछ चश्मे टूटते हैं, but किसी को नहीं पता कहाँ टूटते हैं. बनते हुए टूटते हैं, लॉजिस्टिक्स में टूटते हैं. But then we realized due to the movement of the specs in the case, it can break. And we had to develop a special clip which can withstand a lot of turbulence. तो आपको उतना deep जाना पड़ेगा to understand where, and it doesn't happen so easily. It will only become harder and harder. And similarly on the wow factor, today the world is not the same anymore. Expectations, good is not good enough. तो अभी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, you may think it is amazing, but is that customer going out and talking about it to 10 more people? You have to be that good. So the work has to be done. You have to go very, very deep. You have to be absolutely honest, observe. आप जाते हो एक बर्गर खाते हो, आपका पेट भर जाता है, बट क्या आप उस बर्गर के बारे में 10 लोगों को बताते हो? प्रॉब्ली नॉट, राइट? आप एक एप्पल आईफोन लेके आते हो, आप पूरी दुनिया को दिखाते हो, इंस्टाग्राम वीडियो जाते हो. सो यू हैव टू मैच दैट लेवल. एंड जो आज आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है वो तो कल उसकी हैबिट बन गई है. टुडे वी आर ऑल यूज्ड टू 10 मिनट डिलीवरी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसकी बात नहीं करते. इट हैज टू बी एवर इवॉल्विंग. तो आई थिंक इट इज, you have to do this at very, very deep level. It can't be a side goal. As an entrepreneur, आप ये किसी को दे नहीं सकते हो मेरे हिसाब से.
आप जो भी अपनी वीकली मीटिंग्स करते हो, रिव्यूज करते हो, आपको ये टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. सेल लाना ज्यादा इजी है, अच्छी क्वालिटी की सेल लाना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड yeah, so that is what I would say, that evolution is there, and I think we stuck around to that from the very beginning. Small things matter, and then it becomes part of your culture. So I want to touch upon something that bothers founders today. I'm sure it bothers, I don't know whether it bothers you or not. Marketing costs. Costs are very, very high now to get to the consumer on the digital channels. So what's the secret sauce? How have you managed to keep your costs low? How do you continue to get new customers in? What is that formula, or what is it that you would advise? Give your own example and advice to founders in the room. A very, very relevant question. I think I have a view on this which is not so popular. मैंने देखा है कि एक जनरल ट्रेंड है इंडस्ट्री में, जब आपको कोई सर्विस लेनी होती है या प्रोडक्ट खरीदना होता है, आप किसी कंसल्टिंग फर्म को भी बुला लो. जब आपको खरीदना होता है तो उनका टॉप एग्जीक्यूटिव आता है आपको बेचने, राइट? टॉप मैनेजमेंट. और जितना आपका प्रमोशन होता है, आपका एक क्यारे बढ़ जाता है बेचना, राइट? एंड द मोर यू सेल द मोर यू अर्न. बट जब आप एक बार वो सर्विस खरीद लेते हो ना, आपको वो टॉप एग्जीक्यूटिव नहीं दिखता है, फिर वो जूनियर लोगों को दे दिया जाता है काम करना कि आप इसको सर्विस करो. तो फंडामेंटली न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो बढ़ेगी इन दिस मॉडल. एंड यही किसी भी बिजनेस में, आप D2C ब्रांड देख लो, चाहे आप ई-कॉमर्स देख लो, दिस इज द कॉमन पैटर्न. जब बेचना होता है तो टॉप फाउंडर के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को लगा दिया जाता है. अभी मैं अगर किसी कंपनी को फोन करूं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप को, कि हमको ये सर्विस चाहिए, तो फाउंडर आ जाएगा. जब उस सर्विस में मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब फाउंडर बोलेगा यार जाके देखिए वो कोई प्रॉब्लम हो रही है. तो प्रॉब्लम क्या है ना, द टाइम दैट वी स्पेंड ऑन न्यू कस्टमर एक्विजिशन, आप इतना उस पर टाइम लगा रहे हो कि उसकी कॉस्ट बढ़ ही रही है, राइट? आप यू आर मैन्युफेस्टिंग दैट कॉस्ट टू गो अप इन सम वेज. इंस्टेड, इफ यू फिगर आउट अ वे एंड यू बिल्ड अ स्ट्रक्चर एंड अ ऑर्ग व्हिच केयर्स अबाउट द कस्टमर्स दैट यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड, एंड यू गो आउट ऑफ द वे, उसमें आप प्रॉफिट, नफा नुकसान मत देखो इतना. अभी आपने किसी को बोला, मैं सर्विस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि मैं काम 100 रुपए में करूंगा. अभी आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो गया, हो रहा है, आपके 110 रुपए भी लग रहे हैं, बट यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट. बिकॉज वो 110 रुपए आप नहीं लगाओगे, आज सोचोगे यार इसमें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेट मी फाइंड अनदर न्यू कस्टमर. यू कैन नेवर मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो द ओनली वे इन माई व्यू टू reduce new customer acquisition and survive in today's time is कि आप अपने existing customers पे focus करो, get an experience for them which is so great, you know, and I can give you innumerable examples. और आप इसका फायदा आपको शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, राइट? एंड आपकी टीम को हमेशा लगेगा कि हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, बिकॉज यू नो वी लाइक पीपल लाइक SEM, दे डोंट लाइक SEO, राइट? SEO में आज मेहनत करोगे तो 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, बट SEM में तो आज पैसे डालेंगे इमीडिएटली क्लिक आ जाएगा. तो वी एज एन इंडिविजुअल, आवर ब्रेन्स आर वायर्ड फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली क्विक कॉमर्स में तो सबको सब कुछ फास्ट चाहिए, राइट? बट बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली न्यू कस्टमर एक्विजिशन में आपको ज्यादा दिमाग लगाना है. हाउ डू आई रिटेन माई कस्टमर्स एंड ब्रिंग देम बैक, एंड बहुत बहुत ज्यादा. एंड आई वुड से फाउंडर का तो काम ही इसी में जाना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, पूरी ऑग अलग चलनी चाहिए. जूनियर मोस्ट पर्सन विल सेल, senior most person will serve, and the incentive of the organization has to be on delivering enthusiastic customers and not on delivering sales. Then new customer acquisition will automatically come down in the long term. Wow, this is a completely unique way of looking at it. So I hope all the founders here have taken note of it. But I have a slight follow-up question. Are customers difficult to please? Are they irrational? Does it take a lot? बट उनका तो राइट है ना इरेशनल होना. आई मीन व्हाई शुड दे सेटल? अगर दे एज ह्यूमन बीइंग्स, आपके पास 10,000 रुपए है तो ये कहना मुश्किल होगा कि आर यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर. देयर इज नो इरेशनैलिटी अबाउट इट. आई थिंक आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, राइट? आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो किसी और को करने की. आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द कस्टमर. आई फॉर श्योर थिंक दैट कस्टमर्स हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट. We have a right to set their expectation right and keep delivering. And आपको बहुत डीप में जाके कोर लेवल में समझना पड़ेगा कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है.
आधे टाइम तो हम लोग पैसा लगा रहे होते हैं चीजों में जो कस्टमर को मैटर ही नहीं करते. That's a good thing. So Right. can you give some examples of तो that? अभी जैसे हम चश्मे बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, ऑफलाइन बेचते हैं, ये करते हैं, बट इवेंचुअली तो हम चश्मा ही बेचते हैं ना, राइट? आप जब घर जाते हो आपकी जेब में एक स्पेक्टिकल केस है, एक चश्मा है. तो इफ आई पुट ऑल माई मनी ऑन एवरीथिंग एल्स बट माई स्पेक्टिकल क्वालिटी इज नॉट ग्रेट, will you ever get your new customer acquisition cost low? No. तो you and some of these investments are again long term. आपको अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, मिनिस्टर जी ने कहा यू हैव टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जो अपने 1,000 रुपए या 2,000 रुपए खर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेने में, उसके लिए तो उसमें 2 रुपए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू फील दैट पेन कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन मेकिंग श्योर कि उसको जो लॉन्ग टर्म वाव मिलेगा ना उससे, दैट इज व्हाट इज गोइंग. दे मे नॉट से इट टुडे, इवेंचुअली वो जाएंगे, घर जाएंगे, 1 साल यूज करेंगे आपका प्रोडक्ट, उनको अच्छा लगेगा, सर्विस अच्छा लगेगा, वो घूम फिर के आपके पास आएंगे. So like you've come back in the second edition of Startup Mahkumbh, the wow factor था कि नहीं था? That you Wow returned factor as a है. customer. वाव फैक्टर है. That's why you returned, right? Yeah, yes. Okay, let me ask a point that you raised about omni-channel. So again, it's a question that I think a lot of founders in consumer are thinking about, you know, offline, online. How do you get omni-channel? When do you start offline? You know, how do people answer? How should founders think about this today, given what the investors also expecting, given the consumer now also wants multi-channel sort of approach? ये अभी बज़वर्ड हो गया है ओमनी चैनल. आई थिंक ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब आपको ओमनी चैनल जाना है. इवेंचुअली द वर्ड इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम, राइट? द चैनल इज नॉट ओमनी, द कस्टमर इज ओमनी, तो द वर्ड शुड बी ओमनी कस्टमर, राइट? Yes. Eventually what many of us forget is and I think it's difficult for entrepreneurs also because market भी ऐसे ही सवाल पूछता है, investor भी वैसे ही सवाल पूछता है, employee भी वैसे ही. आप अपनी पूरी ऑग को ओमनी चैनल बनाते हो बट ओमनी कस्टमर नहीं बनाते. अभी अगर आपको आईफोन खरीदना है, आप Amazon से खरीदो या आप क्रोमा से खरीदो या आप एप्पल स्टोर से खरीदो, खरीद तो आप आईफोन रहे हो, राइट? तो उसमें कस्टमर इज द सेम, द चैनल इज नॉट द सेम. सो प्रॉब्लम तो टर्मिनोलॉजी में ही है. एंड देन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम बना देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर हमारी रिपोर्टिंग को हम बना देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन. इन्वेस्टर भी पूछता है ऑनलाइन प्रॉफिटेबल है, ऑफलाइन नॉन प्रॉफिटेबल है, राइट? तो पूरा मार्केटिंग में ये मार्केटिंग ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीवी मार्केटिंग इज ऑफलाइन. तो टेक्निकली ओमनी चैनल ये कोई सवाल ही नहीं है. दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टर्स टू आस्क एंड फाउंडर्स टू आंसर कि आपका कितना बिजनेस ऑनलाइन है, कितना बिजनेस ऑफलाइन है, आपका क्या चैनल से क्या है. चैनल तो इवॉल्व होंगे, it has evolved, it will continue to evolve. What is not at the core of it is that the customer is the same, and that customer we have to keep an eyeball on. मतलब that's why कोई स्ट्रैटेजी बनाता है कि ये प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन बेचेंगे और ये प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेचेंगे. ऐसे होता ही नहीं है. कस्टमर्स आर वेरी वेरी शार्प टुडे. आप 10 रुपए का डिफरेंस कर दो बिटवीन ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड इफ यू रियली आर ऑन द ग्राउंड, आपको 15 मिनट में पता चल जाएगा कि कस्टमर इज अनहैप्पी, राइट? So omni-channel is the wrong term. I think you have to be omni-customer. Your org has to be omni-customer. Your financials have to be omni-customer. And you have to go back and tell your investor कि आप मेरे से customer का metric मांगो. क्या मेरा new customer है, कितनी बार repeat आता है. Channels will keep evolving. तो omni-channel is important because India में 1.4 बिलियन लोग हैं. ऑनलाइन शॉपर्स कितने हैं? 200, 300 मिलियन, 400 हो जाएंगे. 1 बिलियन लोग होंगे जो फोन को यूज कर रहे हैं डेली. वही तो ओमनी चैनल है. दे आर यूजिंग फोन बट दे आर बाइंग इन डिफरेंट चैनल्स, बट द डिसीजन इज गेटिंग मेड ऑन द फोन. एंड द सेम कस्टमर टुडे, sometimes you book a holiday online, sometimes you go to a travel agent, sometimes you want to do an experience. तो customer को focus करना चाहिए, and I think only then omni channel can succeed. Otherwise it can only it makes you take all the wrong decisions for the customer. So, the whole D2C thing has evolved significantly the last, I would say, 3-4 years. Is there any particular technology, any trend that you'd like to highlight that you think is going to be what D2C founders or consumer founders should look out for? That'll really make a difference in their growth, their, the ability to scale rapidly.
See, Arjuna, what is happening right now is that while the principles are the same for the customer, rest everything has changed and is changing faster. पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ी से change हो रहा है. एक तो social media has come into our picture, which makes our consumers lot more evolved, lot more intelligent. They know everything. Not that customers were not smart earlier, but today they are more informed. एंड उनके पास पता है उनको कि मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं. तो द बार हैज बिकम वेरी हाई. जो कल चल रहा था वो आगे चलने ही नहीं वाला है. एंड स्टार्टअप्स को तो बेनिफिट है, बिकॉज हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास एक हिस्ट्री है 10 साल की. तो जब नॉर्मली हमारे लोग सोचेंगे या हम सोचेंगे, हम देखेंगे चलो पिछले साल तक ऐसे होता था, इस साल ये 100 रुपये में हुआ था, अब ये 90 रुपये में होगा. ये 2 साल में हुआ था, हम इस साल 1.5 साल में करेंगे. पिछले साल हम 20% ग्रोथ लाए थे, इस साल 25 लाएंगे. तो एक हम ना, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड अ बेंचमार्क ऑफ लास्ट ईयर, बट दैट बेंचमार्क is not relevant in today's environment because of social media and because of AI particularly. सबको रिफ्रेश करना पड़ेगा. एंड हमारे स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ईजी है, यू आर एन एट एडवांटेज. हमारे लिए मुश्किल है बिकॉज हमको एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिबूट करना है, आपको फ्रेश ओएस को स्टार्ट करना है, राइट. तो आपके लिए यू गाइज आर एट एन एडवांटेज इन टूडेज एनवायरमेंट फ्रॉम द बेसिक. बट आपको मैं एक ही बोलूंगा कि हमारी मत सुनो. मतलब जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको सुन लो थोड़ा बहुत, बट इवेंचुअली डोंट से कि लेंसकार्ट ये करता है तो मैं उससे बेटर करूंगा. आप अपना सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है. डोंट यूज पैरामीटर्स बिकॉज benchmarks are changing. What generative AI is able to do, you have to start fresh. Problem, what I can think of a solution. इस बीच में आप किसी और को मत लाओ कि कौन कैसे काम करता है, यू नो, लेंसकार्ट कैसे चलाता है, जोमेटो कैसे चलाता है, ये सब भूल जाओ. अभी आप फ्रेश सोचो. एंड दैट इज, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर थिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये करना जरूरी है, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे. और हमारे लिए बहुत टफ है, यू नो, टू इरेज ऑल द मेमोरी इन द बैंक is not easy. You know, we have our baggage. तो वही है, आप लोगों को कोई और टेक्नोलॉजी, तो AI is very powerful, but सोच बदलनी पड़ेगी. बिल्कुल फ्रेश, यू नो, फ्रेश तरीके से सोचना पड़ेगा. नो रिलेटिविटी. So coming to fresh thinking, as a shark, as an investor, when you look at startups, what is a fresh thinking that you appreciate and makes you want to invest or get excited about it? I think non-linearity, I think unreasonability, fresh approach. एक तो while I understand everybody wants to improve their quality of life, सबको पैसे कमाने हैं, but somehow I have a firm belief that great founders and great companies are ones which don't work for money. They work to solve a larger problem and they want to create a bigger impact. And everybody may start like that, but somewhere in the journey, आप flip हो जाते हो. But I still feel as an investor, whether you can make money or not, I am not as good as an investor as you are, and that's not my main job. I end up doing this because I decided to be on Shark Tank a few years back. But all I can say is that the motivation of the investor, of the entrepreneur, to me defines the single most parameter for me of what you can generate in the long term, the impact, not in the short term. I am sure in 10 years horizon, there could be very different ways, but in a 20-30 years horizon, and I think every great business takes minimum 20-25 years in India to build. The only thing that defines is what is the motivation of the investor. Like, are you feeling the pain? Is there a problem that you're trying? अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, क्या मैं चश्मा बेच रहा हूँ या वो चश्मा पहन के किसी की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, वो मेरे लिए important है. That, and I can't explain this. Like, of course, you can't market this. You have to feel it, right? Because then you decide things like that, you operate like that. So मेरे लिए वो बहुत important है. I like entrepreneurs who do it with heart and not with Excel. Oh yeah, even I like entrepreneurs with the heart than with an Excel. But are there any specific ideas that excite you? Is there something that you look forward to? See, I think पूरा अभी तो एक तो मेडिकल का मुझे लगता है कि इंडिया में When you say medical, you mean longevity?
Yeah, overall. नहीं नहीं, मुझे अपनी उम्र नहीं बढ़ानी बहुत ज़्यादा. I know that. I'm not talking about that. But today, for an average human, you know, अभी मैं यहाँ आ रहा था. There is somebody, मेरे घर में somebody works, and उसके father को 1 तारीख को कुछ पैरालिटिक अटैक आया, तो एक साइड उसकी पैरालिटिक हो गई है. वो हॉस्पिटल गया, उसको पास कोई तरीका नहीं है. राइट, अभी मुझे रजत दिख गया स्पंदन से. आई एम एन इन्वेस्टर इन हिज कंपनी. तो व्हाट ही इज डूइंग, राइट, ही हैज डेवलप्ड अ ECG डिवाइस जो कि 2-3 हज़ार रुपए का है, जो नॉर्मली आई थिंक 1-2 लाख रुपए का आता हो. एंड केदारनाथ में आई नो इतने लोगों की डेथ होती है या मैराथन्स में बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. एंड दिस गाय रियली फील्स द पेन. You know, I think he cares less about the business, but he has saved so many lives in Kedarnath and marathons by detecting his device, and he has got it US FDA approved. So I think there is a lot of opportunity, because somehow I feel the importance of life in India needs to get higher. You know, I definitely feel it painful when somebody says, यार मैं अपने हॉस्पिटल में अपने डैड को एडमिट नहीं करा पाया, तो मैं उनको घर पे ही देख रहा हूँ कैसे मैनेज करूँ, एंड ही इज नॉट एबल टू. एंड इन चीज़ों में तो द स्पीड ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, द मोर यू प्रोलॉन्ग. सो आई थिंक मेडिकल with AI, with India manufacturing, we can really solve some of the unsolved problems of the world. Yeah, I think on that note, I really want to thank you. We are run out of time. Piyush, very engaging as always, and thank you for coming for Startup Mahakam. Thank you. Thank you so much.